प्रिय भाइयों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आप सबों का आज के इस रविवारी आराधना में आज 3 मई 2020 है और आप सबों का इस आराधना में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, we welcome you today in this morning worship of first Sunday of May 2020, and we hope that we will be blessed by this worship. Let us pray. आइए दुआ करें। रहीम खुदावन, हमारे आसमानी बाप, बड़े ही शुक्रगुजारी के साथ खुदावन हम आपको हुजूरी में आते हैं। इस बात को महसूस करते हैं खुदावन कि आपकी मौजूदगी हमारे दरमियान में है। We thank you, Lord, for this time that you have given to us, and we know, Lord, that your presence is with us, Lord, as we worship you. We thank you, Lord, for your blessed church, Apostle Methodist Church, all the families of this congregation in English, Hindi and Nepali, Lord. We thank you for each one of them, Lord. Thank you, Lord, for their dedication, for their commitment, for their availability to serve you. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी धन्य कलीसिया के लिए, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए, प्रभु हमारे इंग्लिश, हिंदी और नेपाली कॉन्ग्रेगेशन के लिए। हम चाहते प्रभु के हर एक के जीवन पर आपका हाथ पाया जाए। आज के आराधना में आपकी उपस्थिति हो और आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। प्रभु जो आज बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रभु चाहते कि आप उन्हें चंगाई दें और अपना अनुग्रह प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I will sing a hymn in English, and the hymn number is 421. 421. There's a fountain filled with the blood. Hymn number 421. Let us all stand, please. So, खड़े हो जाएं, and we'll sing in English. 421. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein, and sinners drunk beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his days, and there may I, though while I see, was all my sins away, was all my sin away, was all my sins away, and there may I, though while I see, was all my sins away. Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power. Dear all the ransom Church of God, be saved to sin no more. Be saved to sin no more. Be saved to sin no more. Dear all the ransom Church of God, be saved to sin no more. Ever since by faith I saw the stream, thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die.
this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave, lies silent in the grave, lies silent in the grave. When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. Let us continue to stand. हम खड़े रहेंगे और अपने विश्वास वचन को हम प्रभु के सामने एक साथ दोहराएंगे. We'll say this Apostle Creed in Hindi. The Apostle Creed is found in the Hindi hymnal, page number 1. इस समय अपने ईमान के करार हम करेंगे, प्रेरित विश्वास वचन में भाग लेंगे. मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके एकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ. पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादर के मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा. मैं इतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर. आमीन. हम खड़े रहेंगे और अपने इंग्लिश हिम्नल से इस समय उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे. आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है इंग्लिश की किताब में संख्या 602. We have taken today's responsive reading from English hymnal, and that is found in 602. Great is the Lord, great is the Lord. I will extol thee, O God and King, and bless thy name forever and ever. Every day I will bless thee and praise thy name forever and ever. God is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall rout thy voice to another, and shall declare thy mighty acts. On the glorious splendor of the majesty, and on the wondrous works I will meditate. Man shall proclaim the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. They shall pour forth the fame of thy abundant goodness, and shall sing loud of thy righteousness. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and his compassion is over all that he has made. All thy works shall give thanks to thee, O Lord, and all thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom and tell of thy power, to make known to the sons of man thy mighty deeds and the glorious splendor of thy kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom. Let us all read together. And thy dominion endures throughout all generations. And now we'll sing the Gloria Patri. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, and is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen.
seated, please. And now we'll have the pastoral prayer. And our assistant pastor, Pastor Sharon Savan, will lead us in the pastoral prayer. And you have the prayer request. Kindly remember those requests in your heart and mind. Those who are having birthdays during this week, and those who are having and celebrating their wedding anniversaries also should praise the Lord in your heart, so that God shall be glorified. There may be sick people in our midst, especially the elder ones. Some of them might be sick, or anyone. Let us ask the Lord, request the Lord to please touch and heal us. हमारे बीच में अगर आज कोई बीमार है, तो जब प्रार्थना होती है तो आप अपने जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको छुए और चंगाए दे। प्रार्थना करें आज के वचन के लिए कि प्रभु के दास के द्वारा दिया जाए। आइए हम प्रार्थना करें और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर शैरोन साहब। Let us close our eyes and bow down our heads and look to God in prayer. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for this such wonderful moment, this time and this morning, Lord, that you have given us as the blessings in which we glorify your name and we exalt your name on high. Thank you for your mercies, thank you for your grace, Lord, as we are sinners and we cannot come before thee, but you have bestowed your love upon us, Lord. You bestowed your mercies and your grace upon us through Jesus Christ and his precious sacrifice on the cross. And this blood made us able to come before you, and Lord, you accepted us as your co-heirs through Jesus Christ. Thank you, this such love, Lord, this such wonderful grace that you have shown upon all of us, Lord. और जैसा कि पिता हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो कि ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके चरणों पर आएं और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, आपके हम वर्शिप को हम कर सकें, आपकी आराधना को हम कर सकें। और धन्यवाद देते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं तमाम पिता उन चर्चेस के लिए जो कि मीडिया के माध्यम से आपके कलाम को लोगों तक पहुंचा रही है। और पिता जहां जहां पिता मीडिया के माध्यम से लोग आपकी आराधना के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपकी आराधना के अंदर सम्मिलित हैं, उनको आप बहुतायत से ब्लेस करें पिता, और उनके जीवन में कार्य करें ताकि वो आपकी महानताओं को, आपके उस प्यार को, अनुग्रह को वो अपने जीवन में देख सकें। हम दुआ चाहते हैं पिता तमाम उन लोगों के लिए पिता जो लोग अपने घरों पर हैं। सबसे पहले आप पिता उन लोगों के साथ आप रहें जो लोग पिता इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, और उनको आप छुटकारा दें, उनको आप चंगाई दें पिता। और ये जो दौर जो चला हुआ आ रहा है कोरोना वायरस का पिता, यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। और पिता कई तमाम दुआएं की जा रही हैं, तमाम प्रार्थनाएं की जा रही हैं। आप महान परमेश्वर हैं, उनकी प्रार्थनाओं की आप सुध रखें, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए, कांग्रीगेशन के लिए पिता। उनके साथ आप रहें, उनको भी आप आशीष बरकत दें, उनको भी आप महफूज रखें, और उनके पिता परिवारों को भी हम आपके हाथों में देते हैं। सबों के साथ रहें पिता, सबों को आप आशीषित करें। और पिता जो पिता प्रार्थना के अंदर इन्वॉल्व है और जो किसी कारणवश नहीं भी है, उनके साथ भी आप रहें पिता, और उनको भी आप पिता अपने आगोश में, अपने पवित्रता के बाड़े में महफूज रखें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पादरी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मन कुमार पादरी साहब के लिए भी और अपने लिए भी पिता, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी खिदमत को करें। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके नाम के बीड़ा को उठाएं और आपके नाम को हम लोगों तक पहुंचाएं। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवारों को भी हम आपके हाथों में देते हैं, संभाल के रखें, और पिता उनको भी आप आशीष बरकत दें। हम अपनी चर्च की नीड्स को भी आपके सामने रखते हैं पिता। आपकी
बरकतों के द्वारा, आपके आशीषों के द्वारा हमारी चर्च की नीड्स को भी आप भरा पूरा रखें पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस चर्च के अंदर पाई जाती हैं, जितनी भी कमिटीज़ हमारे चर्च के अंदर पाई जाती हैं, उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। वो अपने विजडम से नहीं बल्कि आपकी दी गई गाइडेंस से, आपकी विजडम से चलने वाले हों। और हम धन्यवाद देते हैं उनकी लाइफ के लिए भी पिता, जबकि ऐसी डेडिकेटेड लाइफ आपने चर्च की खिदमत के लिए दी है। सबों के साथ रहें और सबों को अपने अनुग्रह से, अपने वचन से आप परिपूर्ण करें। और पिता आपके नाम का परचम, आपके नाम की महिमा एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा होने वाली हो पिता। हम खास तौर से और प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ भी आप रहें, हमारे बिशप सर और जितने भी कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं पिता, उन सबों के साथ आप रहें, उन सबों को आप आशीषित करें। उनको भी पिता आप संभाल के रखें, उनको भी आप पिता अपने आगोश में रखें, ज्ञान बुद्धि समझ दें, ताकि हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के अंदर पूरी होने वाली हो सके और आपके राज्य को पिता हम स्थापित कर सकें पवित्र आत्मा के सामर्थ और आपके अनुग्रह के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए, जबकि आज के वचन का बीज आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा बोया जाएगा। हमारे दिल और दिमाग को खोलें और पिता जब हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, हम बहुतायत से आपके राज्य के अंदर पिता फल लाने वाले हो सकें। एंड वी डू नॉट कन्फाइन योर फ्रूट्स लॉर्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर लाइव्स, बट वी will spread your words to the needy people, those who are in need and those who are seeking you, Lord, and be with them and pour out your abundant blessings upon them, O Lord, and reveal yourself and manifest yourself to them, Lord, through the words which are living words. And Lord, also transform our lives as per your will, and Lord, also your will be done through our lives, Lord. And we commit each and every one of us into your mighty hand, and we especially pray for those who are sick. Lord, be with them and touch them, Lord, by your everlasting arms, and also, Lord, hold them underneath your everlasting arms, Lord, and pour out your blessings and your healing upon them and touch them through Jesus Christ, Lord. And even we pray, Lord, those who are celebrating their birthdays, those who are celebrating their anniversaries during these days, Lord, be with them and also hold them and protect them by your Holy Spirit, and pour out your abundant blessings upon them, Lord, and transform their lives, and Lord, fulfill their needs in the name of Jesus. And thank you, Jesus, for each and everything. Thank you for today's worship, Lord, as we all are here and we all are watching through media, Lord. And Lord, be with us and also guide us each and every moment of our lives, Lord. And we may glorify your name and exalt your name through our lives as well. Thank you, Jesus, for each and everything. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name, as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. God bless you. And now we'll have the scripture reading. And scripture reading has been decided today for today, Jeremiah chapter 18, 1 to 11. आज का पाठ पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसके 1 से 11 पद। पास्टर शैरन साफी। आज के जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। For today's scripture portion has been taken from the prophetic book of Jeremiah chapter 18 verses beginning from 1 to 11. I will read in Hindi first and then in English. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा।
इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वे चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में ने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना चाल चलन और काम सुधारो। And in English it is written, the Lord said to me, go down to the potter's house where I will give you my message. So I went there and saw the potter working at his wheel. Whenever a piece of pottery turned out imperfect, he would take the clay and make it into something else. Then the Lord said to me, haven't I the right to do with you people of Israel what the potter did with the clay? You are in my hand just like clay in the potter's hand. If at any time I say that I am going to uproot, break down, or destroy any nation or kingdom, but then the nation turns from its evil, I will not do what I said I would. On the other hand, if I say that I am going to plant or build up any nation or kingdom, but then that the nation disobeys me and does evil, I will not do what I said I would. Now then tell the people of Judah and of Jerusalem that I am making plans against them and getting ready to punish them. Tell them to stop living sinful lives, to change their ways and the things they are doing. This is the word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. And now we'll have the praise and worship. हम प्रभु की आराधना करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे कलीसिया के जवान और क्वायर के लोग उसमें हमारे अगुवाई करें। Now we'll have the praise and worship, and I request our church boys and girls and the choir member to lead us in praise and worship. Shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of ram's horn. Shout for joy before the Lord, the King. So let us stand together to praise Him and to worship Him.
Dear Heavenly Father, we praise you, we worship you, we adore you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for giving us this beautiful day. Your grace is sufficient for us. Lord, have mercy on us, Father Jesus. Thank you, Jesus, for being with us in each and every moment to protect us from this deadly coronavirus, Father Jesus. Lord, bless our pastor who is going to share your gospel. Fill him with your Holy Spirit, that he may be able to provide us with the right food during this time of quarantine. We ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Dear friends, today we are grateful to the Lord for the word that will preach to us, and we have been hearing the word of God since 1.5 weeks every evening. प्रिय मित्रों, हम आज प्रभु का वचन सुनेंगे और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन दिनों में हम हर शाम को पोस्ट ईस्टर मैसेज के सीरीज़ में अलग अलग विषय पर वचन सुन रहे हैं। और मेरी आशा है कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। ये वचन का बीज जो हमारे हृदय के अंदर बोया जा रहा है, ये इस कलीसिया के लिए सचमुच में प्रभु की महिमा का कारण है। बहुत से लोगों ने आशीष प्राप्त करी है। कई लोग लिखते हैं, कई लोग फ़ोन करते हैं कि पास्टर वी आर ब्लेस्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खास करके पिछले दिनों जब यूसुफ के जीवन के बारे में बताया गया तो बहुत लोगों ने आशीष प्राप्त करी, और बहुतों ने सुना उसको, बहुतों ने देखा उसको। उसके बाद जब और वचन प्रचार करा गया, यीशु मसीह हमारा महायाजक, उसको लोगों ने देखा, उससे आशीष प्राप्त करी। और हम और विषयों पर वचन का प्रचार सुन रहे हैं। इस सब के लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे ध्यान का विषय बहुत ही अनोखा विषय है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन ए ब्रीफ वे one of the very important topic of the Bible, and that is from Jeremiah's book, 18th chapter, 1 to 11, where Jeremiah was sent by the Lord to a potter's house to see what he is doing. And all that took place there is an allegory, an example for our Christian life. जो कुछ वहाँ पर यिर्मयाह ने देखा वो हमारे लिए एक रूपक के समान है कि हम जो प्रभु के लोग हैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। और मैं इसमें से आज आपके सामने कई बातों को रखूँगा, कई बातों को हम इस पर ध्यान देंगे। करीब 7 बातें हैं जिन पर आज हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, यहाँ की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। Number 1, the word of the Lord came to Jeremiah from the Lord. The word of the Lord came to Jeremiah. ये नबी, ये प्रभु का विश्वासी दास था और एक नम्र व्यक्ति था। इसको वीपिंग प्रॉफिट भी कहा गया है। जेरेमिया इज कॉल्ड अ वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। ये परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने सुनाता था और लोग जब कायल होते थे तो परमेश्वर की महिमा करते थे। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जेरेमिया परमेश्वर की संगति में रहता था। जेरेमिया लिव्ड इन द फेलोशिप ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर द लॉर्ड कॉल्ड हिम। परमेश्वर उसको बुलाया ताकि उसके द्वारा इस्राएल जाति से बात करें। यिर्मयाह के वचन को अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी बातें इसमें दी गई हैं। इस पुस्तक में प्रभु हमसे बातचीत करता है और इस पुस्तक में कुल मिलाकर के, इस पुस्तक में जो हमारे सामने यिर्मयाह की पुस्तक है और परमेश्वर हमसे बात करता है, इसमें बहुत सी बातों का वर्णन है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर के हमारे सामने 52 अध्याय हैं और इन 52 अध्यायों में परमेश्वर हमसे बात करता है। God speaks to those who listen to him and works when we let him. डॉक्टर स्टैली जोन्स ने कहा कि परमेश्वर हमसे बात करता है जब हम सुनते हैं, और उसकी ना सुने इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यिर्मयाह परमेश्वर की तरफ अपने कान लगाए रखता था। जब परमेश्वर से बात करता था तो यिर्मयाह सुनता था। He was attentive towards the word of God. वो परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाए रखता। और इन दिनों में जब हमारे बीच में ये लॉकडाउन का सिचुएशन है,
हम लोग, बहुत से लोग तो शायद परेशान हैं कि कब ये ख़त्म होगा। रहा पता लगा कि ये 18 तारीख तक चलेगा, 18 मई तक चलेगा। हम नहीं जानते इसके आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन एक दुविधा भरी सिचुएशन हमारे साथ, हम में से बहुत से लोग परेशान हैं। हमारे बच्चे परेशान हैं जो पिछले 1.5 महीने से स्कूल नहीं गए। ऑनलाइन स्कूल की पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकती जैसे बच्चों की होनी चाहिए। बहुत से हमारे मजदूर हैं, बहुत से कार्य करने वाले लोग हैं जिनके पास आज करने को कुछ नहीं है, और इसलिए उनके पास राशन भी कम हो गया। और हमारी कलीसिया की तरफ से और भी बहुत से संस्थाओं की तरफ से, और सबसे बढ़कर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इनको राशन दिया जा रहा है। इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर हम सब परेशान हैं। लेकिन ईश्वर के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक शुभ संदेश है। वो कहता है, भजन 40:10 में कहता है, चुप हो जाओ। और लॉकडाउन से ज़्यादा चुप हो जाने की और परिस्थिति क्या होगी? चुप हो जाओ, बी क्वाइट, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में, सब जातियों में महान हूँ। इसलिए हमें इन दिनों में इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। यिर्मयाह परमेश्वर का दास था जो उसके सामने शांत रहता, उसके सामने उसकी आंखें उसकी तरफ लगी रहती थी और उसके कान परमेश्वर के वचन की तरफ लगे रहते थे। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा, उठकर कुमार के घर जा और मैं तुझे वहाँ वचन सुनाऊंगा। Arise and go down to the potter's house and there I will let you hear my words. परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह तू जा, कुमार के घर जा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता है और वहाँ मैं तुझसे बात करूँगा। परमेश्वर यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण देना चाहता था जो हमारे लिए व्यवहारिक है। कुम्हार हमारे गांव में मिलते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उनके पास एक चाक होता है जिसको घुमाते हैं और बहुत बार घुमाने के बाद चाक में गति आ जाती है, चाक घूमने लगती है। तब जो मिट्टी बीच में रखा होता है, कुम्हार उससे अपना जो बर्तन वो चाहता है, चाहे सुराही हो, चाहे कप हो, चाहे कोई और बर्तन हो, कुम्हार अपने मर्जी में बर्तन बनाता है। और परमेश्वर चाहता था कि यिर्मयाह इस बात को देखे, इस बात को महसूस करे। तो उसने उसको कहा, तू जा, कुम्हार के घर जा और मैं तुझे वहाँ अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर आज एफेसस मैथोडिस्ट कलीसिया के लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें आज ऐसा एक रूपक देना चाहता हूँ, कैसा उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ दी पैराबल्स, दृष्टांतों का परमेश्वर है। और हालांकि ये दृष्टांत नहीं है, लेकिन एक सच्ची घटना है जहाँ परमेश्वर यिर्मयाह को भेजता है कुम्हार के पास और कहता है, जा और मैं तुझे वहाँ वचन सुनाऊंगा। हम इमेजिन करें, हम मन में सोचें कि अब हम कुम्हार के घर जा रहे हैं। लेट अस इमेजिन दैट वी ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स ए हाउस ऑफ ए पोटर एंड विल सी What God is going to speak to us। हम सब इस बात को महसूस करें, देखें कि परमेश्वर हमें वहाँ पर क्यों भेज रहा है। तीसरी बात, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। What a wonderful lesson। लिखा है, I went down to the potter's house and there he was working at his wheel, and the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand, and he reworked it and into another vessel as it seemed good to the potter to do। यहाँ पर जो पिक्चर है, जो चित्र है, वो उस कुम्हार का है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। मैंने आपको कहा ना कि इमेजिन करिए
क्या आप एक कुम्हार के घर में खड़े हैं जहाँ वो काम कर रहा है, और कुम्हार क्या कर रहा है, वो अपने चाक उसमें मिट्टी रखी है। अब कुम्हार की मिट्टी की हम कल्पना करें, कुम्हार ऐसे मिट्टी नहीं रख लेता, कुम्हार खेत से मिट्टी लाता है, उसको सुखाता है, उसको पीसता है, उसको बारीक करता है, उसके बाद वो उसको छानता है, तब उसको वो पानी से गूंथता है, और गूंथने के बाद वो उसको तैयार करता है और उसको चाक पर रखता है। The potter doesn't simply put the soil on his wheel, but he goes to a farmhouse or a field and then he brings the soil, he dries it, then he grinds it, and then remove all type of stone and small things, so that soil is ready for the vessel that the potter want to make. And then after he has prepared the soil, he mix the water, and then he mix and prepare the soil, and then he put the soil in that wheel and start making the vessel or pot according to his liking and his choice. Now here the lesson is there. God takes us from anywhere, and the word of God says, Isaiah chapter 53, that we have all gone astray into our own places. हम पढ़ते हैं यहाँ पर यशायाह के 53 अध्याय में लिखा है कि हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, हम भटक गए थे। अब भटकने के कारण हमने अपना अपना मार्ग लिया था, और हमारा अपना मार्ग था हमारी समझ के अनुसार, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एकत्रित करा यीशु मसीह में, हमने पापों का प्रायश्चित करा, यानी परमेश्वर ने जिस पर मिट्टी को कुम्हार साफ करता है, परमेश्वर ने हमें अपने आप को शुद्ध करने का, साफ करने का मौका दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चाक पर हमें रखा, ताकि उसको रखकर उसको घुमाए और हमें ऐसा बर्तन बना दे जो बड़े काम का। पौलुस यही तो कहता है कि हम परमेश्वर के हाथों में मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह गया, उसने आज्ञा मानी, वो कुम्हार के घर गया, और क्या देखता है कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है। परमेश्वर हमेशा काम करता है। यीशु ने कहा, मैं काम करता हूँ क्योंकि मेरा पिता अब तक काम करता, अब तक काम करता। उसके बहुत से काम हैं, दुनिया में इस बात को नहीं समझ सकते। वो जो सारे कायनात का बनाने वाला है, सारी सृष्टि का बनाने वाला है, सारे तारे, नक्षत्र और ग्रह जो लाखों की संख्या में है, वो उनको संभालता है। हम बैठे बैठे घर में यहाँ पर इन बातों को नहीं समझ सकते, परंतु बाइबल में लिखा है, भजनों की किताब में लिखा कि परमेश्वर तारों को उनके नाम लेकर बुलाता है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज द वर्क ऑफ द क्रिएटर इज न्यूमरस, he has many works to do because he controls his creation. अभी ये बताया जा रहा था नासा के द्वारा कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा वो पृथ्वी पर लगने वाला था, या पृथ्वी के बहुत पास से जाने वाला था। मेरा विश्वास यह है कि परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ्य से दूर से जाने दिया, ताकि पृथ्वी पर कोई उसका असर ना पड़े। अगर असर होता तो तबाही हो जाती। इस बात को हम समझें, परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं होने देगा जो उसकी योजना के खिलाफत में है। और न्यूज़ वाले कह रहे हैं, नासा के लोग कह रहे हैं कि वो गुजर तो गया, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर गुजरा, लेकिन फिर से कुछ सालों बाद आएगा। तब भी मैं बता रहा हूँ, ये आप सुन लीजिएगा, तब भी परमेश्वर उसको दूर से ही जाने देगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए, पृथ्वी के लिए एक अनोखी योजना है जिसको पूरा करता है। मोटी सी बात है कि परमेश्वर अभी तक कार्य करता है। और यहाँ लिखा कि वो कुम्हार कार्य कर रहा था और उसने एक बर्तन बनाना चाहा चाक के मिट्टी के द्वारा, लेकिन वो बर्तन जो बना रहा था बिगड़ गया, और उसने उससे मिट्टी से दूसरा बर्तन बना लिया अपनी समझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। परमेश्वर मुझे और आपको, जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लोग हैं, विश्वासी हैं, संत हैं, आराधक हैं, प्रभु के सामने रहने वाले लोग हैं, वो
अपनी मर्जी में हमें बनाना चाहता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड वेरी क्लियरली। गॉड इज मेकिंग अस, प्रिपेयरिंग अस लाइक ऑफ गॉड दैट ही वांट्स। वो हमें ऐसा बर्तन बनाना चाहता है जो उसकी महिमा के लिए हो। अगर हम उससे अपने आप को अलग करके कहें कि हे कुम्हार, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं चाहता मुझे ये नहीं ये बर्तन बना, वो कहेगा नहीं नहीं हो नहीं सकता। कुम्हार मिट्टी को बना सकता, मिट्टी से बातचीत कर सकता है और अपनी मर्जी के अनुसार बना सकता है। लेकिन अगर मिट्टी कहे कि कुम्हार मुझे ऐसा नहीं ऐसा बना दे, ये असंभव है। हमारी समस्या ये है कि हम अपने आप को कभी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान समझते हैं, बहुत ज़्यादा धनवान समझते हैं, बहुत ज़्यादा गुणवान समझते हैं। परमेश्वर आप मुझे ऐसा नहीं ऐसे बनाइए, वो कहता नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भूतकाल को जानता हूँ, तुम्हारे अनंत काल को पूरा जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें मुझे क्या बनाने का आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है पहले कुरिन्थी के पहले अध्याय में कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो। मैं चाहूँगा थोड़ा इसको हम देख लें, इस पर गौर कर लें कि पौलुस क्या कहता है हमारी बुलाहट के लिए, कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में हमारे लिए क्या करता है, हमें क्या बनाता है। और इस बात पर हम थोड़ा गौर करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है 26 पद से, ये भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उनको व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। फॉर कंसिडर योर कॉलिंग ब्रदर्स, नॉट मेनी ऑफ यू वेर wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. परमेश्वर हमें चुनता है, ठहराता है, बनाता है हमारी मर्जी के अनुसार, नहीं अपनी मर्जी के अनुसार। और यहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा कि तू चला जा उस कुम्हार के घर में। जब वो गया तो उसने क्या देखा कि कुम्हार कुछ बना रहा है, कुम्हार कुछ बना रहा है, और जो बर्तन वो बना रहा था बिगड़ गया। तब उसी मिट्टी से कुम्हार ने दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। आज परमेश्वर आप पर मुझे मौका दे रहा है कि हम उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, अपने आप को सौंप दे, ताकि वो अपनी मर्जी में हमें बनाए। टुडे गॉड इज गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी, द प्रिविलेज, सो दैट वी सरेंडर आवर लाइफ ऑन हिज ऑल्टर एंड से लॉर्ड मेक मी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस। परमेश्वर आप अपनी मर्जी के अनुसार मुझे व्यक्ति बना दे, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपके नाम को जलाल दे सकूं। हमारे पास कोई ऐसी लियाकत, खूबी नहीं पाई जाती है, लेकिन परमेश्वर हमें बनाना चाहता है अपने लिए, अपनी महिमा के लिए। शर्त एक बात की है कि हम उसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दें। यही मैं कह रहा हूँ, यही हमारे बाइबल स्टडी का जिस्ट है, सारांश है कि अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंप दें। चौथी बात, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। अब परमेश्वर कहता है, चौथी बात है जिसको हम देखते हैं, देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी, केम टू जेरेमिया, हाउस ऑफ इज़राइल, कैन आई नॉट डू व्हाट you as this potter has done, declares the Lord, behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hands, O house of Israel. हे इज़राइल के घराने के लोगों, जैसे मिट्टी कुम्हार के चाक में है,
उसी प्रकार से तुम सब इस्राएल जाति के लोग मेरे पास हो, ताकि मैं तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार बना लूँ। और इसको थोड़ा आगे अगर बढ़ा ले तो परमेश्वर कहता है, हे एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के विश्वासियों, तुम चाहे इंग्लिश कांग्रीगेशन के हो, चाहे हिंदी कांग्रीगेशन के हो, चाहे नेपाली कांग्रीगेशन के हो, यहोवा की वाणी है कि हम इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं क्या काम नहीं कर सकता। देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के घराने के लोग तुम भी मेरे हाथ में हो। दिस फोर्थ थिंग बात दिस ए मैटर ऑफ ग्रेट मीनिंग। इस वचन को हम समझे, इस वचन को हम देख अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं अपनी मर्जी के अनुसार। तुम्हारे जीवन को मैं उस प्रकार से शेप देना चाहता हूं जो मेरी मर्जी के अनुसार है। और ध्यान रखिएगा, हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। वो अपने हाथ से जो कुछ बनाता है वो सिद्ध बनाता है। लेकिन हम असिद्ध लोग हैं, हमारी समझ अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा एक दिन मिट जाएगा। लेकिन हम अगर अपने ही बातों में घमंड करें कि परमेश्वर आप मुझे वैसा बनाए जैसे मैं चाहता हूँ, परमेश्वर की आंखों में आंसू होंगे और कहेंगे बेटा बेटी ये नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए अच्छा बर्तन बनाना चाहता हूँ, जिसको मैं उपयोग करूँ अपने राज्य के काम के लिए। तुम अपने जीवन को उन ओछी बातों में लगाना चाहते हो जो संसार की बातें हैं, थोड़े समय की बातें, मिटने वाली बातें। हे एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के लोगों, हे मेरे बेटे यीशु मसीह के खून खरीदे लोगों, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते? क्या तुमने अपने आप को मेरी आवाज़ सुनने के लिए अपने कानों को बंद कर दिया है, अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दिया है? देखो, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तुम मेरे शब्द को सुन के अपने हृदय के द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। हम इस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस करें मित्रों। आज वो समय आ गया है। हम जबकि लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अपने घरों में हैं, अपने घर के अंदर हम आराधना कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं और शाम को बाइबल अध्ययन करते हैं और बहुत से काम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये सारे काम क्या मेरी मर्जी में आप कर रहे हैं? अगर मेरी मर्जी में कर रहे हो तो इससे तुम्हें आशीष मिलेगी और तुम मेरी आशीष के हकदार या भागीदार हो जाओगे। पांचवी बात, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अर्थात नाश करूंगा, तो यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही है अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी थी पछताऊंगा। पांचवी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 7 और 8 पर, If at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, and if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do in it. परमेश्वर ने कहता है कि जब मैं किसी राष्ट्र से बात करूं, और यहाँ पर वो किस राष्ट्र से बात कर रहा था? Here he was talking to the kingdom of Israel, the nation of Israel. The nation of Israel had a great history. Under the guidance of Moses, they were delivered from Egyptian bondage. Years ago, सालों के पहले परमेश्वर ने उनको मूसा के अगुवाई से वहाँ से छुड़ाया और उसने एक बड़ा आश्चर्य कर्म करा जो आज भी सारे संसार के लोगों के लिए एक आश्चर्य का कर्म है कि परमेश्वर के लोगों के लिए लाल समुद्र तो 2 भागों में बढ़ गया, जहाँ पर कम से कम 20 से 25 लाख लोग सूखी जमीन में निकल गए, समुद्र के अंदर निकल गए, क्योंकि समुद्र का पानी दोनों तरफ बढ़ गया था। और जब मूसा के अगुवाई में वो निकल कर चले गए, तब ये सेना के लोग जो फिरौन की सेना थी वो भी उस सूखी जमीन पर आ गई। उन्होंने सोचा कि हम भी निकल जाएंगे और इस्राएलियों को मार कर खत्म कर देंगे, उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। तब वहाँ लिखा कि तब आप पढ़ सकते हैं
निर्गमन की किताब के अंदर। तब लिखा कि परमेश्वर जो उस बादल के खंभे में उनके साथ चलता था, उनकी आंखों ने उनको देखा, मिस्र की सेना को देखा। तो लिखा है, पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने अपने हाथों से मिस्र के रथों के पहरे निकाल दिए, पहिए निकल गए। और पहियों के निकलने के कारण तब मिस्रियों ने कहा कि इनका ईश्वर है, यहोवा इनकी तरफ लड़ रहा है, चलो इनके सामने से भाग जाए। लेकिन भाग नहीं सके, क्योंकि अब वो समुद्र का पानी फिर से बराबर हो गया, बहने लगा, और सारी की सारी प्रजा, पूरी सेना जो मिस्र की थी और मिस्र के फिरौन के साथ वो चल रही थी, उस समुद्र में डूब गए। और लिखा कि दूसरे दिन जब सुबह इन्होंने देखा तो समुद्र के किनारे किनारे रथों के अवशेष थे और वो सेना मृत पड़ी थी। इस बड़े काम को उन्होंने देखा था। और उसके बाद वो स्थान जहाँ उनको जाना था, वो प्रॉमिस लैंड, वो कनान देश, विद्वान कहते हैं कि गोशन प्रदेश से जहाँ से वो चले थे, कनान देश की दूरी मात्र 11 दिन या कुछ और दिन का था। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उनको 38 से 40 साल लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि उन्होंने बीच में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा और केवल 2 लोग पहुँचे, नून का पुत्र यीशु और यूपन्ने का पुत्र कालेब। बाकी और सारे जितने पहुँचे वो जंगल में पैदा हुए थे, यहाँ तक कि मूसा भी नहीं पहुँच पाया। परमेश्वर ने कहा था मूसा उस चट्टान से भागकर पानी निकलेगा, और मूसा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया तो लोग बार बार उसकी खिलाफत कर रहे थे। उसने गुस्से में आकर 2 बार लाठी मारी और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू भी नहीं जा पाए, लेकिन पहाड़ पिसगा पर चढ़ जा और उस देश को देख ले जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, तब तू जा नहीं पाया। इस्राएल जाति को यीशु ने और कालेब ने उस देश का भागीदार बनाया। ये वो लोग हैं और परमेश्वर ने कहा था कि वहाँ जो जातियाँ हैं, हित्ती, परिज्जी, एमोरी, यबूसी और बाकी जातियाँ हैं, उनके समान तो मूर्ति पूजा ना करने लग जाना। और इन्होंने वही करा। और अब परमेश्वर कहता है यिर्मयाह के द्वारा, क्या कहता है? जब मैं उस किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही है अपनी बुराई से फिरे, और मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो, पछताऊंगा। बाइबल में लिखा है, मैं चाहूँगा इस पद को हम पढ़ लें, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 14 आयत। क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. ईश्वर का वचन है मित्रों, मेरे भाई और बहनों, अपोस्तल कलीसिया के लोगों, ईश्वर का वचन है। ये पादरी साहब का वचन नहीं है, न किसी कलीसिया के अगुवे का वचन। ईश्वर खुद कहता है कि अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। इस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है? जो लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है परमेश्वर के सामने। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस समय हर रात को 10 से 11 बजे प्रार्थना करते हैं, पर इससे भी ज़्यादा जब भी मौका मिले घुटने में आ जाइए कि परमेश्वर मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर दया करें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम हम्बल देमसेल्व्स, नम्र और दीन करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। ये मौका प्रभु ने मुझे और आपको दिया है मेरे मित्रों इस समय कि हम अपने बुरी चाल से फिरें। और बुरी चाल लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो जानता है। वो मनों का, गुर्दों का जांचने वाला है। यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है
कि हृदय तो सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। इसके मर्म को कौन समझ सकता है? इसके मर्म को परमेश्वर समझ सकता है, पवित्र आत्मा समझ सकता है, यीशु मसीह समझ सकता है। इसलिए हम इन दिनों में पश्चाताप करने की आवश्यकता है, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, रोने की आवश्यकता है, उससे कहना परमेश्वर आप क्षमा करें। हम इसी वचन को और पढ़ते हैं, प्रभु के दास नहम्याह की पुस्तक में, जहाँ पर लिखा है नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहाँ लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, ये लोग जो यरूशलेम से बंधुआई में आए थे, क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा। कौन रोने लगा? नहम्याह बैठकर रोने लगा। वो राजघराने में था, वो बंधुआई में लाया गया था, वो राजा के काम में था, वो पिलाने वाले का प्रधान था, राजा का प्याऊ था, उसको किसी बात की घटी कमी नहीं थी, लेकिन वो रोने लगा क्योंकि उसको दर्द था, उसको तकलीफ थी, उसको बोझ था अपने लोगों के लिए, और विलाप करता रहा, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा ना मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालन करता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए रहा, आंखें खुले रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास यानी नहम्याह इस वक्त यहाँ करूँगा। इस समय तेरे दासियों के लिए, इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे सुन ले परमेश्वर। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मैं मेरे पिता के घराने ने पाप किया है। हमने तेरे सन्मुख बहुत बुराई की है परमेश्वर, और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। Read about the great confession that was made by Nehemiah. As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. And I said, O God of heaven, the great and awful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his covenants, let your ear be attentive and your eye open to hear the prayer of your servant, that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandment, the statutes and the rules that you commanded your servant Moses. Remember the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the people. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost part of heaven, from there I will gather them and bring them into the place that I have chosen to make my name dwell in them, among them. परमेश्वर इस बात को कहता है, और हमने पढ़ा अभी अभी नहम्याह की पुस्तक में कि नहम्याह को जब बताया गया कि यहूदा के अंदर परमेश्वर के भवन की बातें और वहाँ के शहरपनाह की बातें टूटी हुई हैं, तो लिखा है नहम्याह बैठकर रोने लगा और ईश्वर से कहा, परमेश्वर हमने पाप किया है, आप क्षमा करें। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है जब मैं किसी जाति राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैं बात अपनी कही है कि अपनी बुराई से फिरो, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी थी पछताऊंगा। परमेश्वर अकेला है जो माफ करता है, परमेश्वर अकेला है जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करता है, हमें शुद्ध करता है। आज
एफिसस में इस कलीसिया के लोगों, हम जो प्रभु के विश्वास से अपने को कहते हैं, हमें अपने पापों को मानने की आवश्यकता। आप कहेंगे पादी साहब क्या पाप है? दिखता तो नहीं है, लेकिन अंदर आप झांक के देखिए। हमारा घमंड, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना, एक दूसरे पर दोष लगाने की भावना, स्वाभिमान की बात है कि हम तो ज़्यादा देते हैं, हम ज़्यादा करते हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं चर्च के लिए, और बहुत सी बातें। जैसे फरीसी ने कहा कि परमेश्वर मैं दुराचारी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं अपने कमाई का 10वांश देता हूँ, मैं हफ्ते में सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। क्या उनमें से उससे हम बेहतर हैं? क्या कई बार हमारी प्रार्थना नहीं होती कि परमेश्वर, वो लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, उनकी स्थिति हमसे बहुत ज़्यादा दयनीय है, परमेश्वर उनसे हम बहुत अच्छे हैं, आप हमें धर्मी ठहराइए। हमारी स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था, जिसने अपने पापों से प्रायश्चित किया। कि आज हमें अपने पापों को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेट अस think about our own status, what we are doing today. छठवीं बात, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय का हूँ कि मैं उससे बनाऊँ और रोकूँगा, तब यदि उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तो मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए कहा है पछताऊँगा। This was one of the very important things that the Lord is speaking to them. 9th verse and 10th verse. And if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will build and plan it, and if it does evil in my sight and not listening to my voice, then I will relent of the good that I had intended to do in them. परमेश्वर ये कहता है कि मैं क्षमा करने वाला हूँ, अगर पश्चाताप करे मैं क्षमा करूँगा। लेकिन अगर वो अपने रास्ते से फिर ना जाए, उन गलत कामों को करने से बाज ना आए, तो जो अच्छी बातें मैंने सुनी है उसको करने से मैं पछताऊँगा। ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इस बात को यिर्मयाह के द्वारा इस्राएल जाति के सामने प्रकट करता है, आज भी इसको प्रकट करता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखने चलने की आवश्यकता है। अपने जीवन को प्रभु के सामने रखने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और उसके 12-13 पद को जहाँ लिखा है, योएल नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जोएल प्रॉफिट चैप्टर 2 वर्स 12 and 13। तो अभी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़ो, अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलम्ब से कोप करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। जोएल 2:12-13। Yet even now declares the Lord, return to me with all your hearts, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and he relents over disaster. परमेश्वर आज भी ठहरा हुआ है मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम अपने जीवन को नम्र करें, दीन करें। उसने यिर्मयाह को कहा, हे यिर्मयाह, तू मेरे लोगों को बता दे, इस्राएल जाति के लोगों को बता दे कि आज भी मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं उनका भलाई करना चाहता हूँ, उनकी भलाई करना चाहता हूँ, लेकिन वो अपने जीवन में उन बातों से फिर जाएं जो उन्होंने करा है, और मेरे लिए अपने आप को तैयार करें। और आखिरी बात 11 पद। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासी से ये कहे, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे काम से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। Verse 11, the 7th thing. Now therefore says the most to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem,
Thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you and devising a plan against you. Return, everyone from his or her evil ways, and amend your ways and your deeds. हमें अपने आप को उसकी तरफ फिरने की आवश्यकता है। और यही संदेश प्रभु ने उस व्यक्ति के घर में उनको दिया जो एक बर्तन को बनाने वाला था, कुम्हार था। हे इस्राएल के लोग, हे यहूदा के लोग, तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर को फिरो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को नया बनाना चाहता है, नया तुम्हें जीवन देना चाहता है। लिखा है 2 कुरिन्थी के 5:17 के अंदर लिखा है कि वो जो यीशु मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। और मित्रों, हम अपने जीवन के पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, उनको एक तरफ रखना चाहते हैं, हमारे गुनाहों को रखना चाहते हैं ताकि वो ढांपे जाए, और जिस पर से पूरब पश्चिम से दूर है वो हमारे उन गुनाहों को हमसे बिल्कुल हमेशा के दूर करते हैं। तो उसके पास आने की आवश्यकता है। क्या आप आज ऐसा करें? मेरी आशा है मेरे मित्रों, मेरे कलीसिया के प्रभु के धन्य लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण खरीद विश्वासी लोगों, क्या आप ऐसा करेंगे? समय आपका है, समय मेरा है, ये वक्त हमारा है। जब तक हमारी सांस चल रही है वक्त हमारा है। जब सांस हवा शरीर की फेफड़ों से निकल जाएगी वक्त हमारा नहीं होगा। इसलिए आज मैं चाहूँगा कि हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर और उससे कहें कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, आप हमारे मनों को शुद्ध करें प्रभु। और जिस प्रकार से आपने कुम्हार के घर में यिर्मयाह को ले जाके एक संदेश हमें दिया प्रभु, हमने समझ लिया है संदेश कि प्रभु उस संदेश के अनुसार हम आपके सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं। Let us all stand as the servant of the Lord lead in the prayer of penetration, prayer of confession. आइए हम दुआ करें। खुदावन हमारे मुक़द्दस बाप, बड़े ही धन्यवाद के साथ हम आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावन कि आपने अपना कलाम हमें आज दिया है। वो कलाम जो खुदावन हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे का कारण है, जहाँ पर आप कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने गुनाह से तौबा करें तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगाई दूंगा। प्रभु आज हमारे देश में, पूरे संसार में प्रभु जी ये कोरोना वायरस है, हम नहीं जानते प्रभु क्यों ये आ गया प्रभु, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर आपकी मर्जी हुई तो आप इसको समाप्त कर सकते हैं। प्रभु चाहते हैं आज इस कोरोना वायरस को प्रभु आप हमेशा के लिए समाप्त कर दें यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और उससे बढ़कर प्रभु आप हमें ऐसा मन दें कि हम प्रायश्चित के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु आपके सामने रहना सीखें। हमें प्रभु एक ऐसा जीवन दें जो जीवन धन्य जीवन हो, पवित्र जीवन हो, शुद्ध जीवन हो। हम पढ़ते हैं पहले पतरस के पहले अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं पवित्र बनो को तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। वी रीड इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेंट पीटर, फर्स्ट चैप्टर वर्स 16, बी होली बिकॉज द वन हू इज कॉल्ड यू इज होली। प्रभु आप हमें पवित्र करें प्रभु, शुद्ध करें प्रभु, और हमारे जीवन को बना दो उस प्रकार से जिस प्रकार से याकूब के पहले अध्याय के 26 पद में लिखा है कि 27 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सामने शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि हम अनाथों, विधवाओं और वो जिनकी आवश्यकता है उनके क्लेश में उनकी सुने, उनकी मदद करें और अपने आप को दुनिया के पाप से अलग रखें। प्रभु ऐसा जीवन आप हमें दें। इस जीवन को पाने के लिए प्रभु मैं आपका दास कलीसिया का गवाह आज अपने आप को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपता प्रभु, जो खड़े हैं अपने घरों में प्रभु और आपके सामने अपने जीवन को रख रहे हैं प्रभु, आप हमें स्वीकार करें। लॉर्ड एक्सेप्ट अस एज वी आर सो दैट वी फुलफिल योर विल, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करें। जो वचन के बीच आज बोएगा प्रभु व्यर्थ ना जाए और आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि वो हमारे हृदय के अंदर फलवंतित हो जाए और उसमें से 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न हो। Lord, we pray for the word that has been, the seed that has been sown in our hearts. Let it become fruitful, Lord, by the help of the Holy Spirit, and bear fruit of 100-fold, 60-fold and 30-fold. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए एक स्पेशल गीत सुनेंगे। मैं चाहूँगा अपने दिलों को प्यार करें जब हम इस गीत को सुनते हैं। नाउ विल हैव अ स्पेशल नंबर। लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट्स एज वी हियर द स्पेशल नंबर। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है तू जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है तू जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने भेंटों को जमा करें अपने घर में, और जब उसकी ये प्रार्थना होती है तो उसको रखें प्रभु के सामने, और एक लिफाफे में उसको बंद करके रखें, तारीख डाल दें, अमाउंट डाल दीजिए। और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा अपने लिफाफे को लाएंगे और चर्च में उसके लिए प्रार्थना होगी और हम प्रभु के भवन में उसको देंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं और अपने भेंट प्रभु के सामने लाएंगे। गीत हिंदी में है, गीत की संख्या 190। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लेट अस ऑल स्टैंड एंड नाउ विल हैव दिस सॉन्ग एंड विल गिव आवर ऑफरिंग एट द टाइम। दिल के दागों धोए को लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मांस को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामू दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर।
जारी, मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी, रास्ते का है खुशबूदार, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, दुख तकलीफ में है बना, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मजमून, लहू जो कि क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। Dear friends, this is the time for prayer. Let us pray for the offering. Heavenly Father, we bring our offerings, Lord, into your altar. And we pray, God, that would accept these coins as a gratitude, thanksgiving offering of us. प्रभु इस भेंट को जो आपने हमें दिया प्रभु, हम आपके वेदी के सामने लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको स्वीकार करें प्रभु जी, क्योंकि ये हमारे धन्यवाद की भेंट है प्रभु जो आपने हमें दिया है, उसमें से प्रभु कुछ हमने आपको दिया है। इसके साथ प्रभु आज के वचन के आधार पर अपने आप को प्रभु, अपने सब कुछ को, अपने धन को, अपने समय को और अपने पूरे व्यक्तित्व को प्रभु हम आपकी वेदी में रखते हैं प्रभु, आप स्वीकार करें। So this, O Lord, as for the word that we heard today, we offer our lives, our all possessions, our all riches, Lord, our all, everything that we have, all the treasures, Lord, and our whole life, entire being on your altar. हमें स्वीकार करें प्रभु, accept us, Lord, and use this offering for the extension of your kingdom. प्रभु चाहते कि इस भेंट को स्वीकार करें, और इसे अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए खर्च करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ कलीसियाई अनाउंसमेंट हैं जो हम लोग याद करेंगे। मैं खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे तमाम उन भाई बहनों का जिन दिनों में खास गीत हमें दे रहे हैं, और इन गीतों को हम आराधना के समय या हर रोज़ की संध्या बाइबल स्टडी के समय सुन सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से और कलीसिया की तरफ से उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोस्त हु हैव गिवन देयर स्पेशल नंबर so that we can include them in our evening Bible study, in the worship, and I am grateful to them for their number, and I hope that they will continue to give. तो बराबर अपने गीतों को देते रहेंगे। केवल आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आसमान को भेजना है और फिर ये कंपाइलेशन के लिए हम भेजते हैं हमारे भाई कार्तिका साहब। हमारी आशा है कि इन दिनों में जो आराधना हम कर रहे हैं लिंक के द्वारा, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, इसलिए हम इन शाम के बाइबल अध्ययन में भाग लें। समय होता है शाम के 6:30 बजे, और कल भी हम इसमें भाग लेंगे। आज चूँकि हम आराधना कर रहे हैं तो आज शाम की बाइबल स्टडी नहीं होगी, लेकिन कल से फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। तो हर शाम को 6:30 बजे लिंक के द्वारा आपके पास पहुँचता है। मैं चाहूँगा आपसे भाग लें और अपने मित्रों को भी उसमें बुलाएं जो सीकर्स हैं, खोजी हैं, ताकि वो भी इसमें भाग ले सकें। साथ ही साथ हम याद रखेंगे अगले इतवार को हमारी आराधना इसी जगह
ठीक 10 बजे शुरू होगी, यानी 10 तारीख को। तो हम आराधना में हम सब भाग लेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हर शाम को बाइबल स्टडी, जैसे मैंने भी कहा, शाम को 6:30 बजे, और बाइबल के अलग अलग बहुत ही उपयोगी विषयों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। कई लोगों का फीडबैक आया कि उनको आशीष मिल रही है, और मैं चाहता कि हम सब उनमें भाग लें। आप जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के व्हाट्सएप में है, और अन्यथा भी हम उनको भेजते हैं, आप इसमें भाग लीजिएगा। दूसरी खास बात कि जो टाइथ या दशमांश या चर्च फंड आप दे रहे हैं, इन दिनों में हम चर्च नहीं आ पा रहे क्योंकि ये लॉकडाउन है, लेकिन हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको हम किन्हीं कारणवश से यहाँ पर नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप उनको देखिएगा हमारे एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के व्हाट्सएप में। हमारा अकाउंट कैनरा बैंक में है, जो मुनीरका में है, और उसमें हमारे चर्च का बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है और कोड नंबर दिया गया है। आप उसको उसमें नेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपका पैसा सीधे चर्च के अकाउंट में पहुँचेगा। डियर फ्रेंड्स, many people have asked how to give money as part of their tithe and their church fund. Even every Sunday offering that they accumulate in their home. Please write down in your place, in your register or your copy, and send it to our church account, which is in Canara Bank, located this bank in Munirka, and you can name transfer it, and then that money will reach to our church account. साथ ही साथ कुछ लोगों को जो नीडी है, जिनकी आवश्यकताएं हैं हमारे चर्च से, शनिवार के दिन, आज भी कल भी शनिवार था, और उस दिन बहुत से लोगों को राशन दिया गया, और ये अगले शनिवार को भी होगा। अगर आप इसके लिए अपना धन देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहें, आप मेहरबानी से मिस्टर जेम्स अमृत साहब से बात करें और मिस्टर जॉय सैमुअल से, ताकि आपका वो भेंट वो आ सके, और जॉली सैमुअल से बात करें और वो भेंट आपकी होगी, और उससे राशन खरीदा जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो सारा रिपोर्ट हमारे नोटिस बोर्ड में होगा, और पादी साहब की तरफ से एक धन्यवाद का पत्र उसके लिए होगा। अगर आपको कोई आवश्यकता है, आप कोई आत्मिक आवश्यकता चाहते हैं, या आप चाहते कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो मेहरबानी से पादी साहब को फ़ोन करें। पादी साहब का फ़ोन नंबर आपके पास है, चर्च का लैंडलाइन नंबर आपके पास है, आप ज़रूर हमें फ़ोन करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और आराधना को समाप्त करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए जिसको हमने सुना। धन्यवाद देते धन्य आराधना के लिए प्रभु जिसमें हमने भाग ली, और हमारी प्रार्थना प्रभु की जो कुछ हमने पाया प्रभु आज आत्मिक रूप से, उससे हमारा आत्मिक जीवन तरक्की करे। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दी लिविंग वर्शिप टुडे दैट यू हैव हैड इन आवर कांग्रेगेशन टुडे as Sunday worship. We thank you, Lord, for your saints, your believers, your people who have participated. Not only them, but there are many friends who are participating, Lord, in our country and outside also. Lord, we thank you for their life. We pray, God, that thou would continue to guide us and be with us. Especially we pray, Lord, for this very hard days in our country and all over, where you have the lockdown. Nothing is now available outside all the time, but Lord, there are fixed time, and we have to go and come back. So Lord, we pray for during these days, Lord, thou lead us so that we may live our life for your glory and not become discouraged. प्रभु धन्यवाद देते इन समयों के लिए भी, जहाँ पर बहुत कठिन है प्रभु, समय समय पर हमारे बाजार खोला जाता है, जहाँ पर हम जाके सामान खरीद सकते हैं। ये अनोखा अनुभव, लेकिन इसके लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते प्रभु पिछले दिनों जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से दुनिया से चले गए प्रभु जी, आप उनके परिवार वालों को शांति दें, और जो प्रभु जीवित हैं प्रभु, और जो बीमार है प्रभु, चाहते कि उनके चंगाई के प्रभु तक स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें। तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल को दुष्ट इफाकत और शिराकत हम इस हर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट
rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. 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 यीशु ही प्रभु है। सबको जय मसीह की। आनंद से रहिए, शांति से रहिए। परमेश्वर आपके साथ रहे इस समय और हमेशा तक। जय मसीह की।